तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तेलुगु रियासतों के उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। यूपीएससी सिविल सर्विस के नतायज जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना के मुतहदा महबूबनगर जिले की अनन्या रेड्डी ने पहली ही कोशिश में कौमी सतह पर तीसरा रैंक हासिल किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी 2023 में कामयाबी हासिल करने वाले तेलुगु रियासतों के उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने सिविल सर्विसेज के लिए रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 50 से ज्यादा अफराद के इंतखाब पर मसरत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अनन्या रेड्डी को खुसूसी मुबारकबाद पेश की है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व सिरसिल्ला एमएलए केटीआर ने हलकों की हदबंदी का मसला उठाते हुए कहा कि अगर पार्लियामेंट की नशिस्तें कम की गई तो बीआरएस एहतजाज करेगी। केटीआर ने मंगल को आदिलाबाद पार्लिमानी हलके के बीआरएस कैडर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि खानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम के तहत जुनूबी रियासतों ने आबादी पर काबू पा लिया, लेकिन शुमाली हिंद की रियासतों ने ऐसे किसी भी उसूल पर अमल नहीं किया और अब बीजेपी एमएलए और एमपी सीटें आबादी के मुताबिक बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ के चंद्रशेखर राव जैसे कायदीन ही कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं। केटीआर ने पार्टी कैडर को बीआरएस उम्मीदवार आत्माराम सक्कू की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए खूब मेहनत करने का मशवरा दिया है। కానీ తెలంగాణకు పైసా పని చేయని బీజేపీ పండబెట్టి తప్పుదాం, రాముడికి నమ్ముదాం, ఇబ్బంది లేదు. రాముడు అందరి వాడు, రాముడు ఒక పార్టీలో లేడు, రాముడు అందరి దేవుడు. బీఆర్ఎస్ కు ఆయనే రాముడు, బీజేపీకి ఆయనే రాముడు, కాంగ్రెస్ కూడా ఆయనే రాముడు. ఆయన ఏ పార్టీ సభ్యుడు కాదు. రాముడికి మొక్కుదాం, తెలంగాణకు ఆదిలాబాద్ కు పైసా పని చేయని బీజేపీని పండబెట్టి తొక్కుదా. ఆ విషయంలో ఆలోచన కూడా ఉంటుందని మాట్లాడి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. దయచేసి నేను ఇలా కోరేది ఒకటి, చివరిగా ఒక్క మాట నేను చెప్పి ముగిస్తాను. 2026లో భారతదేశం మొత్తం డీలిమిటేషన్ జరగబోతా ఉంది. డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి? కొత్తగా రాష్ట్ర నియోజకవర్గాల పునర్విభజన. ఇటు శాసనసభ నియోజకవర్గాలు పెరుగుతాయి, పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలు కూడా లెక్క ప్రకారం అయితే పెరగాలి. కానీ మొన్న మధ్యనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన కొంతమంది విలేకరులు పత్రికలలో రాశారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే 1980లో 70లో ఆనాడు భారతదేశ జనాభా విపరీతంగా పెరుగుతా పోతున్నది, కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. మాకిద్దరు మేమిద్దరు, మాకిద్దరు మేమిద్దరు మాకిద్దరు, ఈ స్లోగన్ తోని ఆనాడు కుటుంబ నియంత్రణ అని చెప్పి బాగా మన ఆనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈనాటి తెలంగాణ, పక్కకున్న కర్ణాటక, అవతల పక్కకున్న తమిళనాడు, కేరళ, మొత్తం దక్షిణాదిలో ఉన్న రాష్ట్రాలన్నీ కుటుంబ నియంత్రణ బాగా పాటించారు. అందుకే ఇక్కడ జనాభా తగ్గింది. కానీ ఉత్తరాదిలో ఉండే ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, రాజస్థాన్ వాళ్ళేమో ఇల్లే మాట, ఆడేమో జనాభా పెరిగింది. ఇవాళ కేంద్రం ఏం ఆలోచిస్తుంది ఎక్కడైనా? వాళ్ళు ఏమంటారంటే రేపు సీట్లు పెంచాలి 2026లో. ఎక్కడ ఎంతమంది అక్కడ అన్ని సీట్లు పెంచుతామంటారు. ఇది న్యాయమా? ఇది కరెక్టా? దక్షిణాదిలోనేమో కుటుంబ నియంత్రణ పాటించి దేశం కోసం అని చెప్పి పిల్లలు కనకుండా ప్రభుత్వం చెప్పిన మాటిన వాళ్ళకేమో సీట్లు తగ్గిస్తారట. కానీ ఉత్తరాదిన ప్రభుత్వం చెప్పిన మాటినకుండా ఇష్టం వచ్చిన పిల్లలు కానీ మరి అక్కడ పేదరికం పెంచిన వాళ్ళకేమో సీట్లు పెంచుతారట. ఎందుకు ఉండాలి బీఆర్ఎస్ అని అడుగుతున్నారు కొంతమంది. పార్లమెంట్ లో ఎందుకు ఉండాలి బీఆర్ఎస్? ఇది జాతీయ పార్టీల మధ్య ఎలక్షన్ కదా, మీకే సంబంధం అంటారు. ఎందుకు ఉండాలి బీఆర్ఎస్ అంటే రేపటి రోజున తెలంగాణలో మన పార్లమెంట్ సీట్లు తగ్గితే దానికోసం కొట్లాడాలంటే కొట్లాడే ఒకే ఒక జెండా ఈ గులాబీ జెండా మాత్రమే. కాంగ్రెస్ బీజేపీ సన్నాసులు, ఆ టూడు బసవన్నలు, వాళ్ళు ఢిల్లీ వాళ్ళు ఉసుకో అంటే ఉసుకో, డిస్కో అంటే డిస్కో.
సిట్ అంటే సిట్టు, స్టాండ్ అంటే స్టాండ్, నోరు కూడా తెలవరు వాళ్ళు పార్లమెంట్ లో. తెలంగాణకు రేపటి రోజున పార్లమెంట్ లో ఏ ప్రయోజనాలు కావాలన్నా రేపు ఆదిలాబాద్ లో సీసీఐ ఫ్యాక్టరీ గురించి అవసరమైతే ఆమరణ దీక్ష. खैरताबाद एमएलए दानम नागेंद्र ने मुशीराबाद हल्के के बूथ लेवल कारकुनान के एक इजलास में शिरकत की। लोकसभा इंतखाबात की खुसूस में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कशिश फंक्शन हॉल में मुशीराबाद हल्के के बूथ लेवल वर्कर्स का एक इजलास मुनक्किद किया गया। एमएलए दानम नागेंद्र ने इजलास में हिस्सा लेते हुए वर्कर्स को मुखातिब किया। इस मौके पर वजीर सीताक का तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, एमपी अनिल कुमार यादव व दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी हिंदुस्तान के आईन को तबाह करने और हिंदुस्तान के आईन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी मिलकर हिंदुस्तान के आईन को तबाह करने और हिंदुस्तान के आईन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुल्क के अमीर तरीन लोगों की हिफाजत करते हैं और उनके बैंक कर्जे मुआफ करते हैं और वो अब सबसे बड़े बदउनवानी के स्कैंडल का भी दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के ताजरीन से हजारों करोड़ रुपए बटोरे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान का इतिहाद और आइन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही है। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. And the UDF, the Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. That is the central issue. Mr. Narendra Modi is the instrument of 5 or 6 of India's biggest, richest business people. His job is to distract India's people from the real issues. That is why sometimes you will see him doing puja underneath the sea. Sometimes you will see him flying in the sky in a seaplane. Sometimes he will tell the people of India, we will bring the Olympics to India. Another time he will say, we are going to send one man to the moon. But he never talks about the issues that the farmers are facing. He never talks about unemployment. He never talks about price rise. And all he does is he protects the richest people in the country and forgives their bank loans. शेर हैदराबाद के बंजारा हिल्स नंदीनगर इलाके में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब कुछ लोगों को साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की रिहायशगाह से मुत्तसिल खुली अराजी पर काले जादू के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया बरामद हुई। जराये के मुताबिक मुकामी लोगों को मंगल की दोपहर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के मकान से मुत्तसिल खाली प्लॉट से लीमू, सिंदूर, हल्दी पाउडर, एक गुड़िया और दीगर अशिया मिली हैं। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस इलाके को घेर लिया। केसीआर की रिहायशगाह के करीब काला जादू किए जाने की इतला और वहां पाई गई अशिया के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। केसीआर के घर के करीब अगर काला जादू किया गया है तो किसने, क्यों और किस लिए किया है, ये बात फिलहाल एक मौमा बनी हुई है। सियासी जमातों के कायदीन और आम शहरियों में इस हवाले से तशवीश और तजस्सुस दोनों पाए जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस की जानिब से एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है और पुलिस की तहकीकात के बाद ही केसीआर के घर के करीब काला जादू किए जाने की हकीकत सामने आएगी।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु की आवाम के नाम एक पैगाम जारी करते हुए लोकसभा इंतखाबात में AIADMK पार्टी का ताउन करने और पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने EK पलानीस्वामी की क़यादत वाली जमात AIADMK के साथ इत्तेहाद किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को तमिलनाडु की आवाम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो लोकसभा इंतखाबात में AIADMK की हिमायत करें और उस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। सदर मजलिस ने बताया है कि पलानीस्वामी की क़यादत वाली जमात AIADMK ने मुस्तक़बिल में भी बीजेपी से किसी भी किस्म का इत्तेहाद न करने का उन्हें तयख़ुन दिलाया है और वो CAA NRC की भी मुखालिफत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए तमिलनाडु की गयूर अवाम को ये पैगाम और इत्तला देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमिलनाडु के सदर जनाब वकील साहब और उनके हमारे रुफ़क़ाओं ने AIADMK के टॉप लीडरशिप, जिसमें जनाब ईडापाडी के पलानीस्वामी जो जनरल सेक्रेटरी AIADMK हैं और साबिक़ चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत की और हमने और AIADMK में एक इलेक्टोरल अलायंस हुआ है और AIADMK ने इस बात का हमको तयख़ुन दिया है कि मुस्तक़बिल में भी उनका बीजेपी से किसी भी किस्म से कोई अलायंस नहीं होगा और वो CAA और NPR NRC की मुखालिफत करेंगे। इनके इस तयख़ुन के बाद हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में AIADMK की तायीद का ऐलान किया है। मैं आप तमाम से तमिलनाडु की गयूर अवाम से अपील करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर AIADMK के उम्मीदवार हैं, आप उनको अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से और अपने वोट से उनको कामयाब करिए। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए मुंतखब होने वाले आज़मीन के लिए तीसरी और आखिरी किस्त की रकम अदा करने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर की है। शेख लियाकत हुसैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मुंतखब आज़मीन हज के लिए तीसरी और आखिरी किस्त की रकम अदा करने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया है कि कुर्बानी के साथ हज के जुमला अखराजात 3,49,880 रुपये होंगे, जबकि कुर्बानी के बगैर ये रकम 3,34,700 रुपये रहेगी। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी के बगैर क़तई किस्त के तौर पर आज़मीन हज को फीकस 98,080 रुपये अदा करने होंगे, जबकि कुर्बानी के बगैर ये रकम 82,900 रुपये रहेगी। हज कमेटी ने आज़मीन हज को मशवरा दिया है कि वो 27 अप्रैल तक हज रकम की तीसरी किस्त जमा करवा दें। हज 2024 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हर आज़िम हज के लिए कुर्बानी की रकम 15,180 रुपये मुकर्रर की है। शीरख्वारों को साथ लाने वाले आज़मीन हज को अलहदा तौर पर फीकस 9,700 रुपये की ज़ायद रकम अदा करनी होगी। NSUI के रियासती सदर व MLC बालमोरी वेंकट की क़यादत में चिवरला पार्लिमानी हल्के में एक इजलास मुनक़िद हुआ। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में राजेंद्र नगर सर्कल के अप्परपल्ली SBR गार्डन में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी क़यादत NSUI के रियासती सदर व MLC बालमोरी वेंकट ने की। हुकूमत के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी, NSUI तेलंगाना इंचार्ज फहाद,
डीसीसी सदर चल्ला नरसिम्हा रेड्डी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दरियासना MP रंजीत रेड्डी और MLC बालमोरी वेंकट ने SBR गार्डन फंक्शन हॉल से अप्परपल्ली तक निकाली गई एक रैली में भी शिरकत की। కానీ ఈరోజు సేవలే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి దాని తండ్రి పార్టీ అయిన బీఆర్ఎస్ అంటే బీజేపీ రిశ్తేదార్ సమితి దానికి బుద్ధి చెప్పినాం. ఈరోజు దాని తండ్రి పార్టీ అయిన బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక ముసుగులో విద్యార్థులని యువకులని మోసం చేయడానికి వస్తుంది. సో ఆ విద్యార్థులని ఆ యువకులని ఏకదాటిపైకి తీసుకొని పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయించే ఒక బాధ్యత ప్రతి ఒక్క నేషనల్ నాయకుడు తీసుకోవాలి. దానికి ఏ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, ఏ రకంగా మనం మాట్లాడాలంటే 2-3 అంశాలు మీకు చెప్తా. ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయం చేస్తారు. బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో చూసినాము, ఏమని చెప్తారు, రాముని శ్రీరామనవమి దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకునేటట్టు దాని యొక్క ఫెస్టివల్ లెక్క చేస్తామని చెప్తారు. అరే బీజేపీ సన్యాసులారా, శ్రీరాముని మేము ఎప్పుడో మా పూర్వీకులు పూజిస్తారు, మేము పూజిస్తాము. ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా వచ్చి మాకు చెప్పేందుకు నాయన రాముని పూజ చేయమని చెప్పి ఈ వాస్తవాలు మనం చెప్పాలి. ముందుగా పూజిస్తామా పూజించమా, పూజిస్తామా పూజించమా. तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत और गवर्नर को हुक्म जारी किया है कि वो शिया बरादरी की तरक्की और बहबूद के लिए MLC की तकर्रुरी की दरख्वास्त पर गौर करें। शिया सिविल काउंसिल की जानिब से तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए शिया कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने और उनके मसाइल को हल करने के लिए एक कानून साज कौंसिल के रुकन की तकर्रुरी की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए रियासती हुकूमत और गवर्नर को हुक्म दिया है कि वो MLC की तकर्रुरी की दरख्वास्त पर गौर करें। एडवोकेट वी राघव मानेपल्ली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताई हैं। भारत राष्ट्र समिति के साबिक MLA गदारी किशोर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से 4 लाख सिम कार्ड्स बदले जाने का इंकशाफ किया है। BRS रहनुमा व साबिक MLA गदारी किशोर ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए TPCC सदर व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जब PCC के सदर थे तो उन्होंने 4 लाख सिम कार्ड हासिल किए थे और बाज़ाब्ता से एक निज़ाम बनाया गया था कि किस किस को ब्लैकमेल करना है। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी जो अपनी ही पार्टी के फोन टैप किया करते थे आज चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। మంత్రులు గారు అందరి మీద మీకు అసలు విషయం చెప్తా పాటు 4 లక్షల సిమ్ కార్డులు మార్చింది రేవంత్ రెడ్డి. మీరు రాసుకోరు. ఎప్పుడు PCC అధ్యక్షుడిగా 4 లక్షల సిమ్ కార్డు, దానికి వ్యవస్థ ఉంటుంది. రూమ్ పెద్ద దొంగ బ్లాక్బెర్రీ మీకు అర్థమైతలేదు. 4 లక్షల సిమ్ కార్డులు పెట్టుకొని ఆ సిమ్ కార్డులతో ఎవరికి బ్లాక్మెయిల్ చేయాలి, ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి, ఎవరిని బెదిరియాలి, సొంత పార్టీల మీద ఎట్లా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయాలని చెప్పి చేసే ముఖ్యమంత్రి అయ్యే ముందర ఓటర్లు పెట్టినప్పుడు కూడా ఎవరికి మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి ట్యాపింగ్ చేసినాడు వాడే. ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ బ్లాక్మెయిల్ రావాలని ముఖ్యమంత్రి అయినాడు వాడు. అసలు సంగతి అది. వాళ్ళ నాయకులను కాదు కదా, ఎవరు ఒకరొకరు మీ మీద బోర్న బదిలిస్తారు. పాపం వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకుంటారు. మీకు అదిస్తారు కదా వాళ్ళు అంత దొంగ. ఇది వాస్తవం. तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद में बगैर ड्रग्स लाइसेंस के चलाए जाने वाले एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा। 50,000 रुपये मालियती अद्वियात का जखीरा बरामद कर लिया। हैदराबाद में एक मेडिकल शॉप ड्रग लाइसेंस के बगैर चलाई जा रही थी, जहां पर नशावर अद्वियात जैसे कि अल्प्राजोलम गोलियां, कोडीन सिरप्स वगैरह भी दस्तयाब थे। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने नूर खां बाजार इलाके में नजम फार्मेसी पर छापा मारा। मीर हुसैन हैदर रिजवी बगैर किसी दुरुस्त ड्रग लाइसेंस के फार्मेसी चला रहे थे। छापे के दौरान DCA अफसरान ने 36 अक़साम की अद्वियात, जिनमें आदि बनाने वाली दवाएं, एंटीबायोटिक्स, एंटी अल्सर और खांसी के शरबत वगैरह
शामिल थे जब्त किए हैं, जिनकी मालियत 50,000 रुपये बताई गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में 2 मुलजिमीन को रियासत गुजरात के भूज से गिरफ्तार किया है। अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच टीम ने भूज से 2 मुलजिमीन विक्की गुप्ता और सागर पॉल को हिरासत में लिया है। जॉइंट सीपी क्राइम लक्ष्मी गौतम ने बताया कि मुलजिमीन ने 5 राउंड फायरिंग किए थे। बाद में अनमोल बिश्नोई नामी एक शख्स ने फेसबुक पर इस वाक़े के बारे में पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। In 2024 in the morning at about 4:50 a.m. 2 motorcycle-borne accused have fired towards the residence of Bollywood star Salman Khan. Total 5 rounds were fired by the accused who was sitting behind on the motorcycle, and later on during the day Anmol Bishnoi has also written a Facebook account regarding this incident, and his tone was threatening in that, and he has basically written it relating to the particular incident, this particular incident. Later on, Honorable CP sir has transferred the case to the crime branch, and the investigation was handed over to the unit 9. And yesterday we have added sections of the conspiracy to the section because we realized that it seemed to be a prima facie is a bigger conspiracy. 12 teams of crime branch were constituted, and they were given different tasks. On the basis of human intelligence and technical intelligence, we came to know that the accused may be somewhere in the Bhuj district in the Gujarat. Immediately 2 teams, one headed by PI Bharat Gone and subsequently another team headed by PI Arun Thorat of AEC. These 2 teams were sent to Bhuj district. After reaching a town named Nakatrana, which is 58 kilometers from the Bhuj district headquarters, PI Gone's team reached there. Given the background or the apprehensions that because they have fired upon here in the Mumbai, that the accused would probably be armed, we immediately contacted the unit in charge of Bhuj district, and we requested from him support because they are better informed about the terrain. So immediately the SP Bhuj has also provided us 4 LCB officers, and those officers along with PI Bharat Gone, we reached the spot and we were able to nab the 2 accused from there. After that they have been brought today morning to the Mumbai, and they were subsequently arrested and produced in the court. Honorable court has given PCR up to 25th of April 2024. हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने वीजा और पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बावजूद भी शहर हैदराबाद में क़याम करने वाले एक मराकशी बाशिंदे को तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक अचीविली अमीन नामी मराकशी तालिब इल्म स्टूडेंट वीजा पर हैदराबाद आया था। साल 2018 में उसका वीजा और साल 2021 में पासपोर्ट की मुद्दत खत्म होने के बावजूद भी वो हैदराबाद में मुकीम था और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो गया था। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने मराकशी शहरी को तहवील में ले लिया। एस रश्मि पेरोमल HNEW DCP ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी की सईद अली मोहम्मद अल काफरी नामी शख्स के साथ दोस्ती हुई थी, जो कि मंशियात फराहम करता है। HNEW की टीम ने मंशियात फरोख्त करने वाले सईद अली मोहम्मद अल काफरी और उसे मंशियात सप्लाई करने वाले रुमे भारत कल्याणी को भी गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मंशियात बरामद कर ली हैं। DCP ने बताया कि पुलिस की जानिब से गैर मुल्की तालिब इल्म को वतन वापस भेजने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अचीविली अमीन को कल यानी 17 अप्रैल को मराकश भेजा जाएगा।
कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरीट के नॉर्थ ब्लॉक की इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ है वज़ारत दाखिला के दफ्तर में आज सुबह आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही पहुंचे आतिशप्रो अमले ने कुछ ही देर में आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। ओहदेदारों ने बताया है कि एसी यूनिट में आग लगी थी और आग लगने के नतीजे में कंप्यूटर, दस्तावेजात और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है। बेगमपेट पुलिस ने मोटरसाइकिल स्टंट करने और उसके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करने के लिए मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 19 साला शेख नजमुद्दीन ने एक बालिग लड़की के साथ मुबैना तौर पर बेगमपेट इलाके में मोटरसाइकिल सरखा की और उसे शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ शाहीन नगर ले गए। नॉर्थ जोन डीसीपी रोहिणी प्रियादर्शनी ने बताया कि नजमुद्दीन और उनके साथी ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट निकाल दी और वो उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर बाकायदगी से स्टंट्स कर रहे थे और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे थे। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बेगमपेट पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।